Hello, student. How are you all? I hope that you all are fine. Uh, this is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Subject Social Science, Chapter 4, Part 1, Rajput Age. In last video of my channel, you studied and understand about the different type of government and the importance of the government. Organs of the government we also discuss well. Here in this chapter we are going to study about the history. The last video is for the civic. This video is for history section and the title is Rajput Age. So basically we are talking about the Rajput dynasties rule over Gujarat before couple of years ago and what kind of things done at that time that we are going to discuss here. Uh, in this chapter, we discuss about the rise of new dynasties, what is feudal system, dynasties for North India, dynasties of South India, pride of Rajput rulers, things to know, and in the last there is an exercise given for your revision work. So let's start this video. Before we start this video, I would like to tell you that you like the channel, subscribe the channel, like the video, subscribe the channel and share the videos in your social media platform like Facebook, Instagram, like that. And you must press the bell icon because when I upload the part 2 of this chapter, you get direct notification of that part. That is why it is important to press the bell icon. Okay. I got a good response from your side from my last all the videos. I found your interest and the way which we are explaining and discuss the points that I got all kind of comments from your side. I wish that here after this video also I'll get the comments from your side. And if you are having any query, many students ask me many questions regarding the topic. So that is the good thing from your student side that if you are asking, then you learn many things. You improve your knowledge. So always ask, find out the questions and ask the questions. When you are having that confidence that you can ask very fluently, then you are improving yourself. So that is my one request to all of you, or suggestion also, or an advice also, that you ask question whatever you like regarding the content only. Okay. So let's start the video. Uh, like the video and subscribe the channel. So let's see the introduction of this chapter. So here you seen many kind of palaces. See on the screen. In your textbook only one palace given. These are the different kind of palaces which actually built into Rajput era, in Rajput age. And if you see this map, then this whole region is called Rajputanas. So this is not only about the Rajput, but after the time what the situation held in South India, also we are going to discuss in this chapter that is not mentioned in the title. So India is one of the oldest country of the world. बहुत पुराना कंट्री है, 5000 years ओल्ड कंट्री है. और ये 5000 years में इंडिया में बहुत सारे लोग आए. जब आप 10th में जाओगे तो वहाँ पूरा आपको हिस्ट्री आपको पढ़ने में आएगा कि कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था. तो एस्ट्रोलॉइड आए थे, निग्रोइट आए थे, द्रविडियंस आए थे, आर्यंस आए थे. तो इस तरह से इंडिया में इतनी सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि बहुत बहुत कल्चर इंडिया के कल्चर में मिक्स हुए थे. और इंडिया का पहले से ही रूल है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग दैट वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक फैमिली जैसी है. तो इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैटल एंड वॉर्स. वी एक्सेप्ट ऑल द पीपल हु केम टू अवर कंट्री.
and that makes our heritage prosperous. One of the powerful people of that time was Rajput, and many construction and architecture was held during Rajput age. In Rajput dynasty, many powerful rulers were born in our country, which work for the people and for the country. So this we are going to study in this chapter. In your textbook, the chapter is going to start with the story here that Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind: are such palaces still in existence? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answer to this and other similar questions. His grandfather told him a few things like what is discussed here. Such palaces were constructed by kings in ancient times. तो ये kings ऐसे palaces बनवाते थे क्योंकि उनको उनकी प्रॉस्पेरिटी सबको दिखे, उसके लिए ये इतने हैवी, इतने कॉस्टली वो पैलेस बनवाते थे. वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर इन रूइन वाइल अदर आर इन गुड कंडीशन. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे पैलेसेस हैं जिसमें से बहुत सारे ऐसे डैमेज हो गए हैं और बहुत सारे अच्छी कंडीशन में भी है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजिस. तो ऐसे पैलेसेस को जब हम देखते हैं तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आज के डेट का जो कंस्ट्रक्शन है और वो टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होता था उसके बीच में कितना डिफरेंस है. तो बहुत सारा डिफरेंस होता था वैसे देखने जाए तो. आज के डेट में हमारे पास कंप्यूटर है, जेसीबी है, बहुत सारे मशीनरीज है, पर वो टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. फिर भी इतने कंस्ट्रक्शन, इतने आइडल और स्टाइलिश कंस्ट्रक्शन वो टाइम पे होते थे. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. So, we are going to learn about the history during the medieval period. So, rise of new dynasty. So, in first chapter, we discuss about Harshvardhan, the two state. In that we discuss about the king of Kanauj, and in South India the king of Pallav, uh, Pulikesi II. We talk about Pulikesi II, who was belongs to Chalukya dynasty, Solanki dynasty. So after the death of these two great ruler of India, many new dynasties came up in our country. In this map, you easily studied the different kind of dynasties like Chalukyas. These are the Chalukyas, Pallavas, Maitraks, Guptas. So these are the different kind of dynasties arise after the death of Harshvardhan and Pulikesi II. After the death of Emperor Harshvardhan in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains, chieftains means जो लूट करते हैं, उनके जो लीडर होते हैं वो, एंड लैंडलॉर्ड्स डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड न्यू डायनेस्टीज. तो ये जो लैंडलॉर्ड और चिप्टेन थे, जो ये हर्षवर्धन और पुलिकेशी टू के टाइम में उनके अंडर में थे, इन लोग की डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को एक इंडिविजुअल डायनेस्टी, अपना एक अलग किंगडम का किंग डिक्लेयर कर दिया. और इस तरह से बहुत सारी नई डायनेस्टीज आई और यही डायनेस्टीज के बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूडियल लॉर्ड. तो फ्यूडियल लॉर्ड यानी अगर पुरानी लैंग्वेज और गुजराती में अगर उसको बोला जाए तो वो होता है सामंत शाही. सामंत शाही इसको बोलते थे कि पहले राज्य जो किंग्स होते थे वो कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते थे उनके जो
किंगडम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और ये लोग जो पीसेंट और फार्मर्स होते थे उनके पास से टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उसका कुछ पोर्शन राजा को देते थे, बाकी अपने पास रखते थे। उससे वो अपनी आर्मी खुद की बनाते थे और वो आर्मी जब भी राजा को, किंग को ज़रूरत पड़ती थी तब उसको वॉर या बैटल में हेल्प के लिए भेजते थे। पर जब ऐसा कोई पावरफुल किंग जिनका रूल हो उनके ऊपर, अगर वो मर जाता तो फिर ये लोग फ्री हो जाते थे और जो भी रीजन, जो भी प्लेस उनको दिया गया होता था वो खुद को वहाँ का किंग अनाउंस कर देते थे। तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे रखा है स्क्रीन के ऊपर, जिससे आप समझ सको ये वाला। तो ये एक बार देख लेते हैं कि द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस। तो थ्री टाइप की ये थ्री लेयर यहाँ पे है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाया है कि ये तीन जो लेयर है वो कौन से तीन लेयर है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बॉटम में देखिए, यहाँ पे ये वाला पिक्चर भी देखिए और ये वाला भी अगर आप देखिए तो यहाँ बॉटम में देखिए कि पिशेंट है, फिर उसके ऊपर नाइट्स है, फिर उसके ऊपर नोबल्स है और ऊपर सबसे ऊपर किंग है। तो इस तरह से ये तीन ग्रुप में डिवाइड हुआ था। ये जबकि हमारी कंट्री का नहीं है पर सभी जगह पे इसी तरह से सिस्टम होती थी। ये जो है ये हमारी कंट्री का है। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो नीचे पीशेंट है, थ्री टाइप जो आपने बोला, बीच में नाइट है, फिर नोबल्स है और लास्ट में ऊपर किंग। और ये होता था मेडिवियल पीरियड में। तो इस तरह पिरामिड टाइप का हमारा लेयर था, लेयर ऑफ सोसाइटी जिसको बोलते हैं। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंसेस वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फ्यूडियल लॉर्ड, जिसको गुजराती वर्ड में बोलेंगे सामंत। द लैंडलॉर्ड गेव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग। वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका कुछ पोर्शन किंग को दे देते थे। ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम, और बाकी का अपने पास रखते थे। आउट ऑफ विच ही मेंटेन एन आर्मी, और जो बचा उसके पास उसमें से उसकी खुद की एक आर्मी, छोटी सी आर्मी होती थी। ही सेंट हिज आर्मी वेन एवर द किंग नीडेड हेल्प। इन टाइम दिस लैंडलॉर्ड बिकेम पावरफुल एंड फ्यूडियलिज्म केम इन टू एग्जिस्टेंस, जिसको बोला गया सामंत शाही। तो जैसे जैसे टाइम जाता गया ये किंग के कंट्रोल उसके उनके ऊपर से कम होते गए और ये अपने आप सेल्फ डिपेंडेबल हो गए। और वो जो पीरियड हुआ उसको बोला, वो जो सिस्टम चालू हो गई उसको बोला गया फ्यूडियलिज्म, सामंत शाही। और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी नई डायनेस्टीज इंडिया में डेवलप्ड हुई। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज की बात करेंगे। तो एक शॉर्ट में आपको ये मैं बता देता हूँ कि मैनी डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। द मेन डायनेस्टीज रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी। अमोंग दोज साउथ इंडिया वेर इन द पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। तो ये दो ग्रुप में डिवाइड है। अब पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। तो ये नॉर्थ इंडिया का है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डायनेस्टीज। अब इसमें ये जितने भी पिक्चर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इसमें से बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कंटेंट समझने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए ये जो स्लाइड्स है जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है वो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो द किंगडम ऑफ द अर्ली मेडिवियल पीरियड वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो लेट्स टेक फर्स्ट नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग ascended द थ्रोन ऑफ कनौज। अमोंग देम यशोवर्मा इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर। तो ये है यशोवर्मा। तो कनौज की डेथ के बाद बहुत सारे रूलर्स आए। हर्षवर्धन की डेथ के बाद बहुत सारे रूलर्स आए कनौज पे। उसमें से यशोवर्मा सबसे पावरफुल निकला। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश इस रूल इन कनौज। यशोवर्मा के बाद प्रतिहारा डायनेस्टी कनौज में एस्टैब्लिश हुई। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेंशन। तो ये जो थे उन्होंने अरब जो लुटारू थे, लूटने इंडिया में आते थे, उनसे इंडिया की प्रोटेक्ट की थी। मिहिर भोज हु वॉज
ये उनका फ़ोटो है मिहिर भोज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेडिवियल पीरियड की डायनेस्टीज़ है, ये भी आप यहाँ पे एक देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये सेम पिक्चर आपको नेट के ऊपर से भी अवेलेबल मिल जाएगी, जिसके पिक्सल ज़्यादा हो गए तो ऐसे जो यहाँ पे अभी आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है वैसा हो रहा है, वैसा नहीं होगा। तो ये है मिहिर भोज, आप देख सकते हैं इनको, यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो ये एक आपको ये सब आइडिया आता है कि हम कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। तो मिहिर भोज, who was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. कौन सी डायनेस्टी? तो प्रतिहारा डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे मिहिर भोज। ही फॉट मैनी बैटल्स विथ राष्ट्रकूटा ड्यूरिंग हिज reign। तो राष्ट्रकूटा अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे साउथ में ये रहा राष्ट्रकूटा, और मिहिर भोज ने इनके साथ बहुत सारी बैटल की थी। तो राष्ट्रकूटा के बारे में जब हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। द परमार डायनेस्टीज रूल मालवा, तो ये है मालवा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये है पूरा मालवा। ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उज्जैन एंड धार नगरी were the two main cities of Malwa. धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। तो आज मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वो पहले धार नगरी हुआ करता था 7th सेंचुरी में। किंग मूंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वेर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। तो ये किंग मूंज है, ये वाला जो फोटो है ये परमार डायनेस्टी के थे, और किंग मूंज और किंग भोज वो दोनों बहुत ही पावरफुल रूलर थे परमार डायनेस्टी के। और ये जो रूलर्स थे वो अनएजुकेटेड नहीं थे, वो एजुकेटेड थे क्योंकि वो गुड पोएट्स भी थे। दे गेव पेट्रोनेज टू द स्कॉलर इन देयर कोर्ट्स। वो उनकी कोर्ट में जो भी स्कॉलर्स होते थे उनको पेट्रोनेज देते थे, यानी उनको हेल्प करते थे आगे बढ़ने के लिए। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडी विद्यानगरी एंड एस्टाब्लिश अ यूनिवर्सिटी विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो किंग भोज ने इतना सारा डेवलपमेंट किया। अब यहाँ पे ये एक नेचुरल है कि जब आप खुद पढ़े लिखे होते हो तो आप पूरी सोसाइटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हो। अब यही बात हमारी कंट्री के लिए भी आती है कि जब हम इलेक्शन में कोई एजुकेटेड पर्सन को हम लीड करेंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट स्पीड से होगा। अब यहाँ पे ही देख लीजिए कि राजा भोज थे वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी पूरी चालू कर दी संस्कृत लिटरेचर के लिए। Many architectural monuments were built during this time. The Parmar fought many battles with the Chalukya of the south. After the death of Raja Bhoj, the kingdom of Malwa weakened. तो राजा भोज की डेथ के बाद मालवा का जो किंगडम था वो क्या हो गया? वीक हो गया। अब जब हम मेडिकल सर्जरी की बात करते हैं तो हम अमेरिका को नंबर 1 काउंट करते हैं, पर यही किंग भोज का ऑपरेशन 1016 CE में हुआ था ब्रेन ट्यूमर का हमारी कंट्री में 10th सेंचुरी में। अब आप सोचिए कि 10th सेंचुरी में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। तो यहाँ से हम एक जजमेंट ले सकते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल साइंस था वो कितना एडवांस था, क्योंकि वो टाइम पे ना ही कोई कंप्यूटर थे, ना ही ये कोई MRI मशीन या ना ही कोई CT स्कैन मशीन था, फिर भी इंडिया में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वो भी सक्सेसफुल। और वो उज्जैन के जो दो ब्रदर्स थे उन्होंने किया था, और वो टाइम पे एनेस्थेसिया नहीं था, पर उन्होंने सम्मोहिनी करके कोई मेडिसिन होती थी, मेडिसिनल प्लांट जो होता था उसको किंग भोज को देके उनको अनकॉन्शियस किया, उनका पूरा स्कल ओपन किया, उनका ट्यूमर निकाला और उनकी सर्जरी करके वापस उनको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की। तो इतना एडवांस हमारा मेडिकल साइंस था।
ये हम थिंग्स टू नो में मैंने यहाँ पे एक रखा है स्लाइड पे एंड में, तब आप उसको एक बार देख लेना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है वो अमेरिका 600 पहले डिस्कवर हुआ, हमारी कंट्री 5000 ईयर्स पहले डिस्कवर हुई थी और इतनी एडवांस थी। अब बाकी सब सब जगह पे कौन सा रूल था वो देखते हैं। तो द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। तो यहाँ पे आपको ये पाला डायनेस्टी दिखती है और यहाँ पे आपको ये रही सेना डायनेस्टी दिख रही है। तो ये बंगाल और बिहार में ये जो दो डायनेस्टीज थे वो रूल होते थे। द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी had added Pala to their names and so their dynasty was known as the Pal dynasty। तो वो अपने नाम में पाल लगाते थे, उनकी सरनेम जो होती थी वो पाल होती थी, इसलिए ये डायनेस्टी का पूरा नाम पड़ गया पाल डायनेस्टी। Many Rajput rulers of the Chauhan or Chahman dynasty rule over various part of Rajasthan during 7th and 8th century। तो राजस्थान में 7 और 8 सेंचुरी में चौहान और या तो चाहमान डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर बहुत सारे पार्ट में रूल करते थे। ऑफ देम वन ब्रांच रूल ओवर साकम्बरी अ प्लेस नियर लेक सांबर। तो ये लेक सांबर है, ये जीपीएस की फ़ोटो है जो आप देख सकते हो। और इसके पास जो प्लेस था वो था साकम्बरी, जहाँ पे साकम्बरी माता का टेम्पल भी है। अगर आप कहीं घूमने जाओ तो आप जाना यहाँ पे ज़रूर। तो लेक साकम्बर विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर, जो आज का अजमेर है उससे नॉर्थ में ये होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी की बात है ये। अजय राज असेंडेड द थ्रोन ऑफ साकम्बरी इन द 12th सेंचुरी। तो अजय राज करके जो रूलर थे उन्होंने ये साकम्बरी का, ये है अजय राज, उन्होंने साकम्बरी को कॉन्कर कर दिया और उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी वहाँ पे बनाई जिसको बोला गया अजय मेरू, जो आज अजमेर के जैसे जाना जाता है। ही एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ अजय मेरू, ये अजय मेरू सिटी है जो अजय राज ने यहाँ पे कंट्रोल किया था और अपने नाम से ये अजय मेरू बनाया था, जो आज के डेट में अजमेर बन गया है। तो ये है चौहान डायनेस्टी। द रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर दिल्ली द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स एंड एस्टाब्लिश देयर सुप्रीमेसी। फिर ये चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर दिया। तब तोमर किंग्स वहाँ पे रूल करते थे और वहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी एस्टाब्लिश कर दी। पृथ्वीराज 3, तो ये है पृथ्वीराज 3, देखिए ये है पृथ्वीराज 3 और इनको राय पिथोरा भी बोला जाता था। तो ये जितने भी आप फोटोग्राफ्स अभी देख रहे हो वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगे और यही आपको बेनिफिट है मेरा वीडियो मेरी चैनल देखने का कि यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पृथ्वीराज 3 और राय पिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। He is the unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery and the battlefield। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो लास्ट राजपूत रूलर था और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, उनकी जो ब्रेवरी थी बैटलफील्ड में उसके बारे में। चंद बरडाई, तो ये है चंद बरडाई जिन्होंने ये बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ये देखिए ये बुक है और ये है चंद बरडाई का फोटो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो इन्होंने ये बुक लिखी थी, कौन सी? पृथ्वीराज रासो, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये वाली बुक। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज की ब्रेवरी के बारे में हर एक बात डिस्क्राइब की थी। तो मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। चंद बरडाई, अ फेमस पोएट, हैज रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वेलर इन हिज एपिक पृथ्वीराज रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो बुक है जिसमें चंद बरडाई ने पृथ्वीराज चौहान की जो ब्रेवरी थी उसके बारे में लिखा था। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड साहबुद्दीन मोहम्मद घोरी लेटर। तो ये है साहबुद्दीन मोहम्मद घोरी, देखिए इसको।
अब इनके बारे में क्या बैटल हुई थी, क्या हिस्ट्री है, वो हम आगे जैसे चैप्टर जाएंगे वहाँ पे हम वापस हिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द गोहिल और गुहिल्स ऑफ मेवाड़ who were later known as the Sisodiya Rajput hold a unique position in medieval history. It is said that बापा रावल, तो ये है बापा रावल, यहाँ पे ये है बापा रावल का फोटो, आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये है, और ये जो है वो सिसोदिया राजपूत के जो रूलर थे उनका एक आइडिया आपको आ जाए कि वो कैसे दिखते थे, वो है। तो ये बापा रावल जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश की थी ये डायनेस्टी, सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी। ड्यूरिंग द राजपूत इरा द छेदी डायनेस्टी रूल ओवर जबलपुर विच इज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा मध्य प्रदेश। इट वॉज नोन एज द छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचुरी विच इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरी। तो ये यहाँ पे ये मैप में यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको क्लियर से, पर ये जो रीजन है वहाँ की बात चालू है अभी। जो महाजनपद थे 500 BCE में, ये वहाँ का वो टाइम का मैप है। छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचुरी विद द कैपिटल ऑफ त्रिपुरी, प्रेजेंट डे तेवर। In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasty of the Chavdas, followed by the Solankis, rule over Anhilwad Patan। तो अनहिलवाड़ पाटन के बारे में 6th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर आता था, तब आपने उसके बारे में डिस्कस की थी। देयर वेर मैनी वैलियंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट whom वी विल स्टडी लेटर। तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनके बारे में हम जैसे हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे वैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे, साउथ इंडिया की बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, और ऐसे पिक्चर्स के थ्रू आपको उसका पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के वीडियो में बहुत सारे आपके पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में, और आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि इसका जब पार्ट 2 में अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ में आपको ये वीडियो आपकी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।